Hello children, welcome back in SST class. In the next lesson, that is fifth, and the lesson name is The Land of Dense Forests, Congo. Okay? Have you ever heard the name Congo? Yeah, it's a band's name also. This means it's actually a band also. And that is this Congo is different. So let's start. Here, natural regions of the earth. The natural region is an area on the earth having uniformity in climate. What they are having? Uniformity in the climate, soil, vegetation, animal and in human life. So it is called as a natural region. And these are of four types. Which are they? The equatorial region, the hot desert region, the temperate grassland, and fourth one is the tundra region. Okay. Let's start with the first, that is the equatorial region. Fine. The equatorial region extends approximately from 10 degree north to 10 degree south of the equator. The places and continents that falls in this region are South America, Africa and Southeast Asia. What they are saying, the equatorial region extends approximately from 10 degree north to 10 degree south. कहाँ पर होता है equatorial region extends कैसा होता है? Approximately 10 degree north से लेकर 10 degree south तक. And the places and continents that fall in this region, कौन-कौन से हैं इस equatorial region में? कौन-कौन से continents और places हैं? South America, Africa and Southeast Asia. In South America, the countries that fall in this region are Ecuador, Colombia and Brazil. Right? अब South Africa में जो अमेरिका में जो countries हैं जो इस region में आते हैं वो कौन-कौन से हैं? Ecuador, Colombia and Brazil. In Africa, the countries of Liberia, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Guinea and Congo are found in this zone. अब अफ्रीका में कौन-कौन से हैं? Liberia, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Guinea and Congo. While in Southeast Asia, the countries of Malaysia, Indonesia, some parts of India and Australia are found in this region. Okay, children. Now, the Democratic Republic of Congo, earlier known as Zaire. Earlier, what they were called as? Zaire. Who? The Democratic Republic of Congo is our main example of the equatorial region. It is the main example of the equatorial region. Now we shall study about this country. Now about what we will learn about DRC, means Democratic Republic of Congo. So location and land surfaces of DRC. DRC, Democratic Republic of Congo, is the third largest country in Africa. Where? Africa is third largest country. It is a country deep in the center of the African continent. कहाँ है ये? बहुत अंदर है. किसके? African continent के. It is situated in the tropical zone. Where it is situated? कहाँ है ये? Tropical zone में.
द इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्दर्न DRC। इक्वेटर कहाँ से पास होता है? वहां के नॉर्दर्न DRC से। इट वॉज रूल्ड बाय बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960। बेल्जियम इस पे राज करता था कब तक? 1960 तक। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड एज बेल्जियम कॉन्गो। 1960 तक इसे क्या नाम से जाना जाता था? बेल्जियम कॉन्गो। द नेम वॉज चेंज टू ज़ायरे इन 1971। इसका नाम कब चेंज किया गया? 1971 में। क्या रखा गया? ज़ायरे। Once again in 1997, its name was changed to the Democratic Republic of Congo. 1960 तक क्या नाम था इसका? बेल्जियम कॉन्गो। ओके, फिर 1971 में क्या कर दिया गया? ज़ायरे। ओके, और अगेन कब चेंज कर दिया? 1997 में। और क्या रखा गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, विच इज इट्स प्रेजेंट नेम, जो हाल में भी उसका नाम वही है। द कैपिटल इज किनशासा। उसका कैपिटल का नाम क्या है? किनशासा। कॉन्गो ऑक्युपाइज द हार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, which is the vast low-lying area surrounded by mountains and on three sides. उसके क्या है? तीनों साइड से बड़े बड़े पहाड़ हैं। The Zaire River is the second longest river in Africa after the Nile. Children, do you know the longest river in Africa? It is Nile. And second long, Zaire. Fine? Next comes climate. What comes? Climate. अब DRC का climate के बारे में पढ़ाई करेंगे, okay? Being near the equator, the climate in the most parts of DRC is very hot throughout the year. कैसा रहता है? बहुत गर्म रहता है। DRC का क्लाइमेट इक्वेटर के पास होने के कारण हमेशा कैसा रहता है? गर्म रहता है। The evaporation of water due to the high temperature during the day makes the humidity very high. क्या होता है ना कि दिन में धूप बहुत होने के कारण क्या होता है कि पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है पानी का। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? वहां पे ह्यूमिडिटी भी हाई है। इट कॉजेज क्लाउड्स टू बिल्ड अप बाय आफ्टरनून। इसकी वजह से क्या होता है? दोपहर में कभी कभी बादल भी छा जाते हैं। एंड रेन कम्स डाउन एट अबाउट 4 PM। और 4 बजे के करीब करीब क्या होता है? वहां पे बारिश भी होती है। इट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। रोज 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 ये चीजें वहां होती है पूरे साल में, मेकिंग द रीजन वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके कारण पूरे साल वहां का क्लाइमेट कैसा होता है? गीला गीला, पूरा हर जगह गीला रहता है और उसे सबसे गीला रीजन करके भी पूरे वर्ल्ड में जानते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ DRC, स्पेशली इन द साउथ, it does not rain so much, while the summer is hot and wet. The winter is cool and dry. Okay? Now the next is vegetation. Congo has a hot and humid. Congo has a hot and humid climate, which is excellent. For the growth of plants. Due to this region is covered with dense forest called tropical rainforest or evergreen forest. Congo has a hot and humid climate, which is excellent for the growth of plants. आपको पता है कि गर्म और ह्यूमिड वातावरण के कारण यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ड्यू टू दिस रीजन इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे कैसे हैं? जंगल बहुत घने हैं।
इसको इसके लिए क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन सदाबहार हरे भरे जंगल। ठीक है। दिस फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन अ स्मॉल एरियाज। वहां पे क्या है? बहुत सारी वैरायटीज है किसकी? पेड़ पौधों की, और छोटे छोटे जगहों में वहां पर क्या है? प्लांट्स हैं। हियर ट्रीज आर वेरी टॉल विथ थिक undergrowth of shrubs and bushes. Children, now do I need to teach you what is shrubs and bushes? Good. No. They also have a dense growth of creepers and climbers. You know creepers and climbers as well as you know the bushes and shrubs, which are full of flowers. कैसे हैं? Full of flowers. Such density of vegetation prevents sunlight from reaching the ground. अब ये इतने डेंस वेजिटेशन होने के कारण क्या होता है ना कि सनलाइट धरती तक या जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है ना? In parts of southern Congo where the climate is not so hot and wet. अब इसके सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्गो में क्या होता है? क्लाइमेट इतना हॉट या वेट नहीं है। द वेजिटेशन इज डिफरेंट। उसका वेजिटेशन कैसा है? डिफरेंट है। हियर वी हैव ग्रासलैंड्स विथ शॉर्ट ट्रीज। कैसी ग्रासलैंड्स है? छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। सच काइंड ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड एज सवानाज। उन्हें क्या कहते हैं? सवानाज। छोटे छोटे जो वहां पे पेड़ पौधे हैं उन्हें क्या कहते हैं? सवानाज। और पहले के इसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे बहुत मतलब घने जंगल है, जहाँ पे सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच रही हैं धरती तक, उसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेरी गुड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वाइल्ड लाइफ। व्हाट इज wildlife? A large variety of wildlife is found in the forest and savannas of DRC. बहुत सारे तरीके के क्या मिलते हैं हमको? वाइल्ड लाइफ। कहाँ पर? सवानाज इन द फॉरेस्ट एंड सवानाज ऑफ DRC. एलिफेंट्स, बफेलोज, गोरिल्लास, चिंपांजीज, baboons, hippopotamus and lions, leopards, giraffes, zebras, okapis, wolves, as well as elephants and chimpanzees roam around the savannas. अभी कितने सारे प्रकार के यहाँ पे प्राणी मिलेंगे वाइल्ड लाइफ? एलिफेंट, बफेलोज, गोरिल्लास, chimpanzees, baboons, hippopotamus and rhinoceros, and some mammals found in the forests. Okay. Lion, leopards, giraffes, zebras, okapis, wolves, as well as elephants and chimpanzees roam around the savannas. Roam around the savannas means आपको चिंपांजीज और एलिफेंट्स कहाँ मिलेंगे? सवानाज में ऐसे ही घूमते घामते मिलेंगे। फाइन। Crocodiles are found in the plenty in the rivers. Crocodiles means what? Yes, मगरमच्छ। कहाँ मिलेंगे? रिवर्स में। वो भी इक्के दुक्के नहीं, बहुत सारे। There are many types of birds and insects in the forest. Birds और insects पता है ना क्या है? Among the insects is found the dangerous sitz fly. Okay, which causes sleeping sickness. एक अलग तरीके की वहां पे सिट्स फ्लाई है, जिसके कारण क्या होता है? सोने की बीमारी होती है। सोने की मतलब गोल्ड वाला नहीं, सोना, स्लीपिंग वाली बीमारी। हैविंग अ प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, DRC इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहा जाता है इसके कारण? नेचुरल जू ऑफ द world, right? The next is natural resources. DRC has rich natural resources. There are vast minerals deposits in the southern DRC, especially of copper,
कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम एंड डायमंड्स। बाप रे, DRC में गोल्ड और डायमंड्स भी मिलते हैं। गुड। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड इंडस्ट्रियल डायमंड्स इन द वर्ल्ड। DRC में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? कोबाल्ट और द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? इंडस्ट्रियल डायमंड्स। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, यहां से बहुत सारे मिनरल्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। With about 48% of the land covered with forest, DRC has one of the best forest resources in Africa. Children, this is really very interesting. Just go through the books once when you'll get the book, and you will see you are developing interest in the SST again. Okay, now the next, farming is done in large areas from where forests have been cleared. खेती भी होती है यहाँ पे जहाँ से सारा फॉरेस्ट का एरिया क्लीन कर दिया जा चुका है। The major food crops are cassava, maize and rice. सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन से किसकी खेती की जाती है? cassava, maize and rice. कसावा इज द स्टेपल फूड, वहां का फेवरेट फूड में से एक है। ओके, कॉफी, कोको, कोका, रबर एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन। और इसके अलावा क्या क्या चीजें उगाई जाती है वहां पे? कॉफी, कोका, रबर एंड कॉटन। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल resource. Water is another important natural resource. Dams built on the rivers produce electricity. Wow, so many interesting things are happening there. Where it is another important natural resources, dams built on the rivers produce electricity. Fine. Now we will see the life of the people in DRC. अभी तक क्या देखा हमने? वहां का क्लाइमेट देखा, वेजिटेशन देखा, वाइल्ड लाइफ देखा, नेचुरल रिसोर्सेज देखा। नाउ विल सी द लाइफ ऑफ द पीपल। DRC इज थिनली पॉपुलेटेड, बहुत ज्यादा वहां पे लोग नहीं रहते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस इन द हाईलैंड्स इन द ईस्ट एंड अलोंग द रिवर्स। बहुत से लोग वहां पे कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं, और वो भी कहाँ पे? रिवर्स के साइड में रहते हैं, ईस्ट में। ओके, ओनली अबाउट 30% पीपल लिव इन सिटीज। सिर्फ 30% लोग कहाँ रहते हैं? सिटी में, और बाकी कहाँ रहते हैं? अपने गांव में। द कॉन्गो रीजन हैज अ few industries like textiles, petroleum products, tobacco and food processing. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बहुत कम। वहाँ पे क्या क्या है? इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, कपड़ों का, पेट्रोल का, टोबैको, तंबाकू का, और फूड प्रोसेसिंग का बहुत कम पैमाने पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। दिस आर लोकेटेड इन द मेजर सिटीज ऑफ किंशासा, लुबुम्बाशी एंड माताडी। ओके, कहाँ पे है? किंशासा, लुबुम्बाशी एंड माताडी। लोकेटेड इन द एंड रेल एंड रोड कनेक्ट सिटीज विद ईच अदर। और इन सारी चीजों को क्या कनेक्ट करता है? रोडवेज एंड रेलवेज। ओके, बट लैंड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सो वेल डेवलप्ड। पर वहां का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है? बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर रिवर कॉन्गो एंड अदर रिवर्स इज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा रिवर यूज करते हैं? कॉन्गो रिवर। और वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट माना जाता है। माटाडी इज द मेन सी पोर्ट एंड किंशासा द कैपिटल सिटी इज एन इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट। वहां के पोर्ट कौन से हैं? माटाडी एंड किंशासा। Modern facilities are available in the cities. The rich city dwellers live in houses
live in the houses. Modern facilities are available in cities. The rich city dwellers live in houses and apartments and drive cars. Wow! वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अपार्टमेंट्स भी मिलता है, हाउस भी मिलते हैं, एंड दे ड्राइव कार ऑल्सो. बट द पुअर लिव इन क्राउडेड अनहेल्दी कंडीशंस इन स्लम्स. पर जो गरीब लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? स्लम एरिया में रहते हैं, बहुत ही खराब कंडीशंस में. विलेजेस लिव इन thatched huts in separate tribes और ग्रुप्स. विलेजेस कहाँ पे रहते हैं? हट्स इन झोपड़ियों में. कहाँ रहते हैं? ट्राइब्स और ग्रुप्स कहीं अलग जगह रहते हैं अपने ग्रुप्स के साथ या ट्राइब के साथ. ईच हैविंग देयर ओन कस्टम्स. और हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है. देयर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन DRC. बाप रे बाप, 200 से ज्यादा ट्राइब्स है वहां पर. कहाँ पे? DRC में. द बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब. और सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? बंटू. दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर. कैसे हैं वो लोग? लंबे और घुंघराले बाल. द मोस्ट वेल नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ DRC एंड सम अदर कंट्रीज इन अफ्रीका आर पिग्मीज. क्या होते हैं? पिग्मीज. सुना होगा आपने पिग्मीज नाम. लॉन्ग एगो Pygmies probably live throughout DRC. Pygmies पूरे कहाँ रहते थे? DRC में, and other part of Central Africa. But now they are fewer in number. पर अब कैसे कम होते जाते हैं ना लोग डे बाय डे, वैसे वो पिग्मीज का भी नंबर कम हो गया है. And live only in certain parts of the rainforest. अब कहाँ रहते हैं पिग्मीज? कहीं छोटे पार्ट्स में रेन फॉरेस्ट में वो लोग रहते हैं. पिग्मीज आर शॉर्ट इन हाइट. पिग्मीज कैसे होते हैं? हाइट कैसी होती है उनकी? छोटी होती है. ओके. दे गेट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट फूड्स. बाप रे. स्टिल व्हाट दे आर डूइंग? दे आर हंटिंग. In this era also they are hunting for the food. What they are hunting? They are hunting the animals and they are getting their food by plants. They live in camps which they occupy for only a week. वो लोग क्या करते हैं? कैंप्स बनाते हैं एक एक हफ्ते के लिए, और एक एक हफ्ते के लिए शायद वो लोग माइग्रेट करते होंगे. देन दे मूव टू अ न्यू प्लेस. एक जगह एक ही हफ्ते रहने के बाद वो तुरंत दूसरे हफ्ते दूसरे जगह चले जाते हैं. दे मेक हट्स आउट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. वो क्या करते हैं? एक झुग्गी टाइप या झोपड़ी टाइप चीज बनाते हैं. किससे? पत्तों से और टहनियों से. Since the weather is hot and humid, the tribal people do not wear many clothes. वहाँ पे क्लाउडी रहता है पूरा क्लाइमेट और गर्मी बहुत ज़्यादा रहने के कारण वो लोग बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं. But on special occasions they wear colorful costumes. पर अगर कोई त्योहार रहा तो कैसे पहनते हैं? कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. They enjoy singing, dancing and telling stories. वो लोग कहानियां बोलते हैं, वो लोग गाने गाते हैं, वो लोग डांस भी करते हैं. Yes. The Democratic Republic of Congo, DRC, relies on its rivers, lakes for much of its transportation. Thus, it is developing fast. From the point of view of the potential of the hydel power generation, DRC ranks first in the world. Wow, it's great. Children, you might have seen this chapter is really very interesting and which is totally dependent on DRC, means the Democratic Republic of Congo. I hope you like this chapter. You will go through it. You will listen this video often so that you can come to know each and everything about this. Okay? Hope you will be at home, safe. You will take proper measures. Right? Study hard, children. Thank you.